Hello everyone, this is Tanvi here. So welcome back to the YouTube channel of Statesman Academy. As you all know that UGC NET notification is already out now after this whole pandemic scene. So I think this is the high time that I discuss with you some of the important topics, or I can say some of the most awaited videos, right? So today I will be talking about opportunities in physics. What all choices you are having after you complete your MSc in physics, right? हम सभी को पता है कि अगर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हमारे पास बीटेक है, एमबीए है एंड सो ऑन, उसके बाद हमें क्लियर कट पता है एक हमारे पास ट्रैक होता है, हमें कंपनीज में होना है प्लेस, चाहे फिर वो हम कैंपस प्लेसमेंट में हो जाए या फिर हम खुद अप्लाई करके करें, राइट? बट व्हाट आफ्टर एमएससी फिजिक्स? सी देयर इज नॉट जस्ट टीचिंग इन इट, हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ या चॉइसेस हैं जो हम एमएससी फिजिक्स के बाद कर सकते हैं. सो आज मैं उसमें से उन चॉइसेस में से एक चॉइस को एलेबोरेटली डिस्कस करने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग टू दैट आई विल बी डिस्कसिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बेसिकली होती हैं, राइट? सबसे पहली जो मैं आज अपनी सारी वीडियो में डिस्कस करूंगी दैट इज रिसर्च. रिसर्च बहुत हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट या हमारे पास एक बढ़िया चॉइस है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर एमएससी फिजिक्स. ऑब्वियसली getting into the highest degree of your stream will take you somewhere at a higher position, obviously. So this will help you go there. This will help you achieve what you have dreamt. Right. So today I will be discussing how you can, or what are the ways in which you can enter this option easily. Right. Okay. One is research. Second, obviously teaching. Right. Teaching. Physics is not an easy subject. Everybody knows. And every student needs a help or assistance in getting to learn this subject. Right, so teaching has a great opportunity as a career in our physics branch after we complete our MSc physics. And then we can, nowadays there's a trend going on, or there are so many options, or there are so many vacancies as a content writer after an MSc physics. This is in trend. If you Google it now, you will get to know कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं. Obviously I'll be telling it too. Right. Then we have so many government jobs. We have so many government jobs that we can opt after our MSc physics. Right. And there are so many other branches. Today I will be discussing basically about research. So रिसर्च में जाने के लिए सबसे इजी और बेस्ट भी होगा हमारा एक एग्जाम, एक नहीं दो एग्जाम्स. सबसे इजीएस्ट पाथ हमारे पास वही होगा, दैट इज यूजीसी और सीएसआईआर नेट. एक पेपर ये हो गया, दूसरा हमारे पास होगा गेट. If you have cleared any of these two exams, you are directly eligible for many of the central universities, state universities, IITs and NITs. Just you have to clear this exam. इसी की अभी नोटिफिकेशन आई है UGC नेट वाले की, हमारी भी अभी आने वाली है. So stay tuned guys, subscribe to our channel. We will be uploading topic wise videos, free videos for your preparation too. Right. So इनमें से अगर आपका कोई एग्जाम क्लियर है तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो. और दो सेशंस होते हैं इसके, ठीक है? एक तो वो हमारे पास पीएचडी के पोजीशंस लेते हैं जनवरी में, और दूसरी हमारे पास वो लेते हैं जून में. राइट. फॉर दैट यू नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, right, if you have cleared these exams or you are not able to, there are entrance tests of the specific universities too. For example, PU अपना PhD के लिए अलग से entrance test लेती है, DU अपना PhD के लिए अलग से entrance test लेती है. उसके थ्रू भी तुम PhD में enter कर सकते हो. So ऐसे ही नहीं, if you are interested in research, you can easily get into PhD. No, आपके हाथ में कोई ना कोई टेस्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं जा सकते. सो इजिएस्ट बात ये है. अब
अगर आप बोलो कि मुझे चूज करना है कि मैं एंट्रेंस टेस्ट पे ज़्यादा मेहनत करके क्लियर करूं या ये, obviously guys, if you are clearing this exam CSIR or UGC NET, you will be eligible for teaching in the colleges too easily, right? गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में प्रोफेसर लगना है तो तुम्हें पीएचडी के साथ साथ ये एग्जाम करना ही पड़ेगा, और ये रूल यूनिवर्सिटीज के लिए ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है इस साल जुलाई से, कि अगर तुम्हें प्रोफेसर लगना है या सिर्फ पीएचडी या सिर्फ ये टेस्ट वाला, अब सीन खत्म हो गया, अब तुम्हें दोनों चीजें अपने हाथ में चाहिए अगर तुम्हें प्रोफेसर लगना है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अभी ये कॉलेजेस के लिए नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इफ दे हैव फिक्स्ड दिस रूल फॉर द यूनिवर्सिटीज दे आर गोइंग टू अप्लाई दिस एग्जैक्टली सेम रूल फॉर द कॉलेजेस टू, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रस्ट मी, बहुत लाइफ शॉर्ट हो जाती है अगर इनमें से हम पेपर क्लियर कर लेते हैं, वो मैं बताऊंगी क्यों। बहुत सारे और भी पर्क्स हैं हमारे पास, क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। व्हाट्स बियॉन्ड आफ्टर यूजीसी नेट और गेट एग्जाम, there are other entrance tests, and one of the most important tests apart from this test is our JEST examination known as Joint Entrance Screening Test. To know more about it, you can visit its website www.jest.oh.in, but I'm going to tell you किस इंस्टीट्यूट में ये वाला टेस्ट एलिजिबल हो, तुम एलिजिबल हो जाओगे इस वाले टेस्ट के साथ, राइट? सो first is Aries, then we have Bose Institute, we have HRI, Harish Chandra Research Institute, IISc, Indian Institute of Sciences Bangalore, we have all the ISers, 7 ISers we have in total, then we have PRL, Physical Research Laboratory, we have TIFR, then we have VECC, right? Apart from these institutes, others now that take students based on this test are INST, that's located in Mohali, then we have NPL, that's located in Delhi, we have Institute of Physics, we have Raman Research Institutes, that's also located in Bangalore, right? So इनके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट पड़ी है. If you want to have that list, you can write it in the comment section. We'll be providing you with the list too, right? So ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटीज, IITs, NITs में एडमिशन ले सकते हो. These are very good institutes as we compare them in the field of researches with the foreign countries, right? So इनके अलावा भी तुम, और इन इंस्टीट्यूट्स की एक खासियत ये भी है, इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं. So उसके लिए you have to visit their respective websites, right? So next way to get into the research is, that's the most underrated. I don't understand why. That is, you can also enter in this field as a project fellow, right? What is this project fellow, right? सरकार होती है ना, इंडियन गवर्नमेंट, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालती है रिसर्च के, टीचर्स लेते हैं उन्हें, तो उनके लिए ऑब्वियसली दे नीड फेलोज जो उन्हें प्रोजेक्ट में, रिसर्च प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे. उसके लिए वो स्पेशल पोजीशंस निकालते हैं प्रोजेक्ट फेलोज की, और इसकी खासियत ये है कि तुम्हें पैसा भी मिलेगा, राइट? ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द एड, जितनी भी गवर्नमेंट से तुम्हारे पास प्रोजेक्ट के लिए आई है उसी के हिसाब से तुम्हें पर मंथ फेलोशिप भी मिलेगी एज अ प्रोजेक्ट फेलो. एंड लेटर ऑन, अब तुम बोलोगे प्रोजेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट यू कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू PhD फेलो. हाउ? तुम इसी रिसर्च के बेसिस पे अपने काम को PhD में कन्वर्ट कर सकते हो. सो एनरोलिंग एज अ प्रोजेक्ट फेलो इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर, राइट? ठीक है, अब मैं आपके पास थोड़ा सा डिस्कस करूंगी अबाउट फेलोशिप्स. क्या क्या फेलोशिप्स तुम्हारे पास मिल सकती हैं, किस किस बेसिस पे होती हैं. सो मैं बता रही थी आपको फेलोशिप्स के बारे में, राइट? सबसे पहला पेपर मैंने बोला था कि तुम अगर UGC, CSI या नेट कर लेते हो, यस, इफ यू क्लियर दैट एग्जाम, उससे PhD में तो एडमिशन होगा ही होगा,
पर उसके साथ तुम्हें पैसा भी मिलेगा, क्यों नहीं चाहिए, राइट? हम बोल देते हैं ना हमारी लाइन में सेट होने के लिए टाइम लगेगा, नो गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल बी गेटिंग fellowship after you clear this exam. How much? You get 31,000 per month for the first 2 years, and as soon as you are registered as the PhD fellow there, then this will be increased to after 2 years 35,000 per month, and that's really a good sum. That's really a good sum for a student like us, right? So 35,000 मिलेगा per month. इसके अलावा पूरे साल में तुम्हें 20,000 कंटीजेंट अमाउंट भी मिलती है फॉर योर स्टेशनरी, फॉर योर केमिकल्स, फॉर योर अदर थिंग्स दैट यू नीड इन योर लेबोरेटरी. इसके अलावा यू गेट दिस अमाउंट टू. एंड उसके बाद तुम्हारे पास अगर तुम्हें बाहर कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है या कोई और काम है, राइट, ट्रैवल एक्सपेंसेस ये सब भी इन्वॉल्व होता है. उसके लिए भी अगर तुम्हारा JRF है, तुम क्या कर सकते हो, तुम उन सब चीज़ों के लिए भी सरकार से पैसा इजीली ले सकते हो. सो देखो कितनी लाइफ शॉर्ट हो गई, सिर्फ एक पेपर क्लियर करना है. एंड गेट के बेसिस पे इफ यू हैव क्लियर्ड द गेट एग्जाम, देन ऑल्सो यू गेट द सेम अमाउंट एज सेट बाय द UGC गाइडलाइंस फेलोशिप, बट that's not for all the institutes. IITs have them, some of the other institutes have them, but not the state and the central universities, right? They don't give you fellowship on the basis of your GATE exam. No, you have to clear JRF for that. Apart from these fellowships, हमारे पास और भी फेलोशिप्स होती हैं पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग. अगर तुम इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट उसके लिए पैसा देगी. अगर कोई और में कर रहे हो, उसके लिए पैसा देगी. स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए भी हमारे पास फेलोशिप्स है. उसके लिए तुम्हें UGC, MHRD और तुम्हारे पास DST की वेबसाइट्स पे जाके टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि अब उन्होंने कौन सी फेलोशिप रिलीज की है. एंड इफ यू आर मीटिंग all the demands or conditions, then you can apply for that either directly or through your institute in which you are enrolled. So this was all about the fellowships, and there I'll be telling in the furthermore videos specifically कौन सी और हमारे पास fellowships होती हैं. I will be telling you about them too. So guys, I am stopping this video here. This will be continued further, right? Stay tuned, subscribe to our channel. एंड इस चैनल पे और भी फ्री वीडियोस तुम्हारे सब्जेक्ट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम डालते रहेंगे, जो तुम्हारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे विल बी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर, राइट? थैंक यू.